So we'll continue from where we stopped in the last class. So we had done up to escape velocity in the previous class. So we'll start with orbital velocity today, and satellite and orbital velocity today. So let's continue. So सबसे पहले satellite क्या है? Satellite is a body which continuously revolves on its own around a much larger body in a stable orbit. ठीक है? तो एक कोई बड़े ऑब्जेक्ट को एक छोटा ऑब्जेक्ट उसके अबाउट रिवॉल्व कर रहा होता है, उसको हम लोग सैटेलाइट कहते हैं. There are two kinds of satellite. One is natural satellite, other is artificial satellite. Natural satellites क्या है? A satellite created by nature is called natural satellite. जैसे moon is a natural satellite of Earth, right? Artificial satellite, a man-made satellite is called an artificial satellite. Man-made satellite, first satellite जो Earth का था वो Sputnik 1 था. Russian scientist ने इसको place किया था. Okay. Now India's satellite जो है वो first geo satellite of India was Arbhat 1 and geostationary satellite of India was Apple 1. Now essential conditions for satellite motion: center of satellite's orbit should coincide with center of Earth. तो अगर मान लो ये Earth है तो इसका center और इसके about जो orbit है satellite का उसका जो center होगा दोनों एक ही जगह होना चाहिए. दूसरा plane of orbit of satellite should pass through the center of Earth. तो ये जो plane है ना, ये plane should pass through the center of the Earth, and satellite should move around great circle of Earth, right? तो great circle of Earth as in कि ये हम लोग इसको मानते हैं कि ये इक्वेटोरियल प्लेन के अराउंड ही इसका मूवमेंट है. Now orbital speed निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि about, so suppose that a satellite of mass m orbits a planet in a circular orbit of radius r. तो ये हमारा satellite है mass m का और ये हमारा earth है capital M का, इसको orbit कर रहा है radius r में, right? Now with orbital speed v naught, मान लो इसका जो orbital speed है v naught है. Center of orbit of satellite coincides with the center of planet, है ना? Center of planet और center of orbit coincide करता है, ये तो necessary condition था satellite का. A gravitational force of Earth on satellite plays the role of centripetal force. तो ये जो Earth इस satellite को अपनी ओर जो attract करता है force of ये gravitational force of attraction के वजह से, that will provide the necessary centripetal force. क्योंकि circular motion में तो तभी move करेगा जब उसके पास centripetal force होगा. Centripetal force कौन provide कर रहा है? ये जो gravitational force है वो centripetal force provide करेगा. तो gravitational force provides the necessary centripetal force. Gravitational force क्या है? G mm upon r square. Mass of Earth, mass of satellite divided by the radius, the distance of the satellite from the center of the Earth will provide the necessary centripetal force, that is mv naught square by r. mm कट गया, ये r कट गया, तो जो v naught है this is equal to root under gm by r. तो orbital speed, so orbital speed v naught will be equal to root under gm upon r. ठीक है ना. हम लोग अभी पिछले क्लास में भी देखे थे कि gm को हम लोग स्मॉल g इंटू आर स्क्वायर लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय r का रूट अंडर, राइट. सो इफ द एल्टीट्यूड ऑफ द ऑर्बिट इज h, है ना, अगर ये जो यहाँ से जो इसका हाइट है दिस इज इक्वल टू h, तो इससे क्या हो जाएगा, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस ऑफ h, रिप्लेस कर लेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस h. ठीक है.
So when the satellite revolves close to the surface of the earth, h is equal to 0 and the orbital velocity will become v0 is equal to root under gr. ठीक है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है, अब जब ये h is approximately equal to 0, h जब 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर जी आर स्क्वायर बाय आर, ये कैंसिल हो गया तो ये क्या हो गया, रूट अंडर जी आर हो गया. कब, when h is equal to 0. तो जब when the satellite revolves around the earth at an orbit which is very close to the surface of the earth, then in that case the orbital speed is root under gr. g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, रेडियस हमारा 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर है. इन सबको यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, है ना, 9.8 यहाँ पे और r का वैल्यू यहाँ पे, तो जो ऑर्बिटल स्पीड आता है वो 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड आता है. तो फॉर सैटेलाइट्स विच मूव वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, the orbital speed is equal to 7.92 kilometer per second. Is it clear? Yes, sir. Now, the angular speed of the satellite. So angular speed omega is equal to v0 upon r, right? Orbital speed divided by radius r will give you angular speed. तो linear speed root under हम लोग को gm, तो ऑर्बिटल स्पीड हम लोग को पता है रूट अंडर gm बाय r है. इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, v नॉट इज इक्वल टू रूट अंडर gm बाय r. इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर gm बाय r डिवाइडेड बाय r, और ये r को अंदर लेके जाएंगे तो वो r क्यूब बन जाएगा, r स्क्वायर, ये r स्क्वायर हो जाएगा, एक r ऑलरेडी है, रूट अंडर gm बाय r क्यूब हो गया. ठीक है, ये हमारा एंगुलर स्पीड हो गया. अब इसको अगर रेडियस ऑफ अर्थ और हाइट h के टर्म्स में लिखना है तो रूट अंडर gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, ऐसा करके लिखते हैं. आगे समझ. नाउ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन निकालना है. टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू रूट अंडर gm बाय r क्यूब है, तो यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, और ओमेगा का वैल्यू रूट अंडर, पिछले स्लाइड में देखा gm बाय r क्यूब है, सो दिस इज 2 पाई रूट अंडर gm अपॉन r क्यूब. तो रूट अंडर gm अपॉन r क्यूब, ये r क्यूब ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया 2 पाई रूट अंडर r क्यूब अपॉन gm, विच इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर r प्लस h का होल क्यूब डिवाइडेड बाय gm. ठीक है, so this is 2 pi root under r plus h का whole cube divided by gm. Now put gm is equal to gr square. तो ये जो हमारा gm का वैल्यू gr square पुट कर लेंगे, 2 pi r plus h का whole cube divided by gr square. So when the satellite revolves close to the earth, h is equal to 0 हो जाएगा. So for closer to earth, so close to earth, when the satellite moves in an orbit close to earth, in that case t becomes 2 pi root under h 0 हो जाएगा तो रूट अंडर r बाय g हो जाएगा. सब्स्टिट्यूट कर देंगे सारा वैल्यूज तो ये हमारा 84.6 मिनट्स निकल जाता है सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने पे. r जो रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर पुट कर देंगे, g का वैल्यू 9.8 पुट कर देंगे,
तो हम ये 84.6 मिनट्स निकल के आ जाता है टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। क्लियर है बच्चों? यस सर। नाउ हाइट ऑफ सैटेलाइट अबव द अर्थ सरफेस, तो कोई सा भी हम लोग इक्वेशन मान लो, ये इक्वेशन है जो टाइम पीरियड का t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर r प्लस जी होल क्यूब बाय जी आर स्क्वायर। अब इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर प्लस एच का होल क्यूब बाय जी आर स्क्वायर। सबको उस तरफ लेके चले जाएंगे, ये आर स्क्वायर कट गया, सॉरी 4 पाई स्क्वायर है ना। तो इसको सबको उस तरफ ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा टी स्क्वायर जी आर स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर रेज टू द पावर 1/3 माइनस ऑफ एच, माइनस ऑफ आर, सॉरी हम लोग एच का वैल्यू निकाल रहे हैं। सो हाइट ऑफ सैटेलाइट अबव द अर्थ सरफेस इज इक्वल टू दिस। क्लियर है बच्चों? यस सर। नाउ एंगुलर मोमेंटम, हम लोग को पता है एंगुलर मोमेंटम mvr होता है। सो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू ऑर्बिटल वेलोसिटी इनटू रेडियस r। ऑर्बिटल वेलोसिटी रूट अंडर gm बाय r है, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। L इज इक्वल टू एम वी नॉट r, v naught is root under gm upon r into r. So this is g capital M square into r. So angular momentum is root under g m square into r. Now potential energy, the gravitational potential energy of the planet satellite system is, so potential energy is given as minus of g upon r. Okay. So this is the potential energy. Now if we see the kinetic energy for a satellite, so देखो माइनस जी एम एम बाई आर पोटेंशियल एनर्जी हो गया। काइनेटिक एनर्जी करेंगे हाफ एम वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा। सो वी नॉट स्क्वायर ऑर्बिटल वेलोसिटी अब हम लोग लिखते हैं हाफ इंटू एम इंटू वी नॉट है रूट अंडर जी एम बाई आर। वी नॉट स्क्वायर मतलब जी एम बाई आर हो गया। सो ये क्या हो गया जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r हो गया। ये हमारा हो गया काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पिछले स्लाइड में हमने लिखा माइनस जी एम एम अपॉन आर है, राइट। सो ये इसका हाफ है वैल्यू, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी करेंगे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू है जी एम एम अपॉन 2r, पोटेंशियल एनर्जी का माइनस जी एम एम अपॉन आर। So this is minus gmm upon 2r. So this is the total mechanical energy. So the total energy is negative because the satellite is bound by the planet's gravitational fold. Negative energy इसीलिए कि satellite. So satellite is bound by the planet's gravitational field. Total energy of satellite will be half the potential energy of satellite, which is equal to minus of kinetic energy of satellite. So kinetic energy gmm by 2r है, माइनस gmm by 2r पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल गिव यू द टोटल मैकेनिकल एनर्जी। उसके अलावा so half of potential energy will give you total energy basically.
उसके अलावा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी से अगर कंपेयर करेंगे तो टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी GMM/2R है, टोटल एनर्जी माइनस GMM/2R है, तो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल गिव यू द टोटल एनर्जी। क्लियर है बच्चों? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट क्या होता है? द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ सैटेलाइट टू लीव इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड एस्केप टू इंफिनिटी इज कॉल्ड इट्स बाइंडिंग एनर्जी। तो ऐसा सैटेलाइट जो कि ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है प्लैनेट के अबाउट, उसको जितना एनर्जी देंगे जिससे कि वो ऑर्बिट छोड़ के इंफिनिटी चला जाए, है ना, एस्केप कर जाए, है ना, so that is basically known as binding energy. So energy required by a satellite to leave its orbit around the earth and escape to infinity is called its binding energy. Now total energy of a satellite is minus GMM/2R. In order to escape to infinity, it must be supplied an extra energy equal to GMM/2R so that its total energy E become equal to 0. Hence, binding energy of a satellite is also equal to GMM/2R. Now, if you see here, if you plot the graph of total energy, potential energy, and kinetic energy of a satellite with distance r from Earth, we know that total energy is equal to minus GMM/2R, and kinetic energy is equal to GMM/R. Potential energy minus GMM. So kinetic energy is GMM/2R, and potential energy, so if you see here, is minus GMM/R. So the potential energy is minus GMM/R, kinetic energy is GMM/2R, total energy is minus GMM/2R. है ना, इन दोनों को ऐड करेंगे, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बनाएंगे तो हमें टोटल एनर्जी निकल के आएगा। सो अब इनको अगर प्लॉट करो तुम, है ना, हम इनको ग्राफिकली प्लॉट कर रहे हैं। सो काइनेटिक एनर्जी को GMM/2R है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी GM/2R, इसका ग्राफ क्या होगा? सो y इज इक्वल टू r जो है x रखे हैं, y जो है एनर्जी रखे हैं। सो बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये हाइपरबोलिक कर्व मिल जाता है तुमको। और उसके अलावा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो माइनस GMM/R है, नेगेटिव साइन है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ये ऐसे पैराबोला होगा, और ये माइनस GMM/2 हटा है, टोटल एनर्जी जो है ये इतना होगा, ठीक है। Now work done in changing the orbit of satellite, तो मान लो जो वर्क डन, आपको जो एनर्जी देना पड़ेगा एक सैटेलाइट को एक ऑर्बिट से उठा के दूसरे ऑर्बिट तक रखने में, सो दैट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट। तो एनर्जी ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट was total energy is minus GMM/2R as mentioned here. So energy in the second orbit will be GMM/2R1 minus GMM/2R2. So this is the energy which needs to be given to a satellite so that it can be shifted from one orbit to the other orbit. ठीक है ना बच्चों, एक सैटेलाइट को एक ऑर्बिट से उठा के दूसरे ऑर्बिट तक लेके जाना है तो इतना एनर्जी हम लोग को देना पड़ेगा।
अब जैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हमने देखा था, वहां पे जो रोटेशन होता है सैटेलाइट का, अर्थ के साथ साथ ही रोटेट कर रहा होता है, मतलब उसका भी जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, उस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होगा, है ना, दैट विल बी इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। नाउ other one is polar satellite. The polar satellite is basically which moves in an orbit perpendicular to the uh, equatorial orbit. So it is that satellite which revolves in polar orbit around the earth. A satellite in polar orbit will pass over both the north and south geographic poles once per orbit. ठीक है, तो नॉर्थ पोल एक बार में कवर करता है, दूसरे बार में साउथ पोल कवर करता है, एक पूरा चक्कर लगा के आना चाहिए। Most polar satellites are sun synchronous satellite. So a sun synchronous orbit is also called a heliosynchronous orbit. It is nearly polar orbit around the planet in which the satellite passes over any given point of planet surface at the same local mean solar time. Now, every location on Earth lies within the observation of polar satellite twice each day. The polar satellite are used for getting the cloud images, atmospheric data, ozone layer in the atmosphere, and to detect the ozone hole near Antarctica. तो ये सब generally application है इनका। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जैसा कि मैंने बोला, दोनों का जो अर्थ जो है अपने ऑर्बिट के अबाउट जो रोटेट कर रहा है, उसका रोटेशन का स्पीड और सैटेलाइट का स्पीड दोनों अगर सेम हो जाता है तो उसको हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट विच आर स्टेशनरी विथ रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ आर कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो ऐसे सैटेलाइट्स जो स्टेशनरी हैं, ठीक है, सो सैटेलाइट विच आर stationary with respect to an observer on earth are called geostationary satellite. Now they are also called parking satellites. एक ही जगह रहते हैं, दिखता है, वो मूव नहीं करता हुआ दिखता है, एक ही जगह पे दिखता है फिक्स्ड अर्थ से, तो इसीलिए उसको हम लोग पार्किंग सैटेलाइट भी कहते हैं। Now height of geostationary satellite. So a height of geostationary satellite is given by t square r square g by 4 pi square 1 by 3 minus r. Now g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, r का वैल्यू 6.4 into 10 to the power 6 मीटर है, and for geostationary satellite t is equal to 24 hours. Now solving we get h is equal to 35,786 किलोमीटर। ठीक है, सो ये जो इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो हाइट है वो कितना आ गया, 35,786 किलोमीटर। Now let us do some numericals. पहला क्वेश्चन है, two satellites of same mass are launched in the same orbit around the earth so that they rotate opposite to each other. ठीक है, तो let's say so two satellites of same mass are launched in same orbit around the earth so that they rotate opposite to each other. तो एक अगर इधर रोटेट कर रहा है तो दूसरा इधर रोटेट कर रहा है, opposite to each other, same mass. एक इधर भी mass है, इधर भी mass है. If they collide inelastically, ठीक है, obtain the total energy of the system before and just after the collision. Before the collision, सो ऐसे इसको ऐसे मान लो कि पहले ये इधर से आ रहा था और ये इधर से आ रहा था, ये दोनों आके इस पॉइंट पे कोलाइड किए, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा था, एक इधर चला गया एक इधर चला गया,
So total energy of the system just before and after the collision. So before collision, orbital speed v naught जो है is equal to root under जी एम अपॉन आर हो जाएगा. ठीक है. सो जो ऑर्बिटल स्पीड है दिस इज इक्वल टू रूट अंडर जी एम अपॉन आर. राइट. This is before collision. Now total energy before collision is equal to दोनों का एक का हो जाएगा जी एम एम माइनस जी एम एम अपॉन 2r माइनस जी एम एम अपॉन 2r बिफोर कोलिजन. दोनों को ऐड कर दो, माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन स्मॉल आर हो गया. टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन. Now after collision total energy टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन अगर हम लोग निकालेंगे तो कोलिजन के बाद स्पीड देखो, इनइलास्टिकली कोलाइड कर रहा, मान लो तो जाके टकराएगा तो दोनों सेम स्पीड से मूव करेगा. तो दोनों सेम स्पीड से मतलब m प्लस एम इंटू वी डैश इज इक्वल टू एम वी प्लस ऑफ एम वी. ठीक है. सो m प्लस एम वी डैश इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर देंगे. राइट. अब देखो यहाँ पे एक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, दूसरे ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों का डायरेक्शन अलग होगा. एम वी माइनस एम वी लिखेंगे. सो वी डैश इज इक्वल टू 0 हो गया. ठीक है. सो टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू माइनस जी एम एम माइनस जी कैपिटल एम इंटू 2m डिवाइडेड बाय आर हो जाएगा. क्योंकि ये तो अब बस पोटेंशियल एनर्जी होगा ना आफ्टर कोलिजन. आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी 0 हो जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो गया. आफ्टर कोलिजन की बात कर रहे हैं तो टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन इज दिस प्लस, मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया. सो दिस इज माइनस 2g कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर. अब इन दोनों को ऐड कर दो. ठीक है. हम लोग को निकालना है, नहीं हम लोग को ये निकालना है कि obtain the total energy of the system before and just after the collision. तो ये just after the collision है और ये before the collision, यही निकालना था. कह रहा डिस्क्राइब द सब्सिक्वेंट मोशन ऑफ द रैकेज. जब दोनों टकराया उसका काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा तो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट होकर नीचे गिरेगा. राइट. तो द रैकेज फॉल्स डाउन अंडर ग्रेविटी. आफ्टर कोलिजन क्या होगा, द रैकेज wreckage falls down after collision. Falls down under gravity after collision.
क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. So a satellite of mass 2 into 10 to the power 3 kg has to be shifted from an orbit of radius 2r to another radius of 3r, where r is the radius of Earth. Now calculate the minimum energy required. R is equal to 6,400 किलोमीटर and G is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये सब दिया हुआ है. अब देखो क्या कह रहा है, सैटेलाइट ऑफ मास 2 into 10 to the power 3 kg, 2000 kg इसका मास दे रखा है सैटेलाइट का. So M is equal to 2000 kg has to be shifted from an orbit of radius 2r to another orbit of radius 3r. है ना, 2r से 3r पे शिफ्ट करना है. मान लो ये है 2r से हमें शिफ्ट करके 3r पे लेके जाना. ठीक है. Where r is the radius of Earth. Calculate, तो ये radius of Earth यहाँ पे r है. Calculate the minimum energy required. तो अब देखो एनर्जी रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी यहाँ पे माइनस टोटल एनर्जी यहाँ पे. So final energy minus initial energy will be the energy which is required to shift it to that place, right? So total mechanical energy of a satellite is equal to minus gmm upon 2r. Now energy in first orbit, so energy in first orbit अगर हम लोग देखेंगे, this is equal to minus gmm upon 2 into 2r हो गया. So which is equal to minus gmm upon 4r हो गया. E2 जो है, this is energy in second orbit. उस ऑर्बिट का जो रेडियस 3r है, तो माइनस जी एम एम बाई 2 इंटू आर के जगह 3r कर देंगे, माइनस जी एम एम अपॉन 6r हो जाएगा. तो अब हमें कह रहा है कि एनर्जी रिक्वायर्ड कितना होगा, E2 माइनस E1 होगा, राइट? सो एनर्जी रिक्वायर्ड is equal to E2 minus E1. So this is minus gmm upon 6r minus of
minus GMM upon 4R. ठीक है, that is, देखो माइनस GMM अपॉन R को कॉमन ले लो, माइनस GMM अपॉन R को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा कि 1/6, ठीक है ना, माइनस 1/4 बचेगा, राइट. सो दिस इज माइनस GMM अपॉन R. एलसीएम ले लेते हैं 12, 2 minus 3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस ऑफ GMM upon 12R. So this is the amount of energy which is required. अब इसमें वैल्यू पुट करने के लिए बोल रहा है GM के जगह तुम GR स्क्वायर वैल्यू डाल दो, GM के जगह GR स्क्वायर इंटू स्मॉल m बाय 12R कैंसिल करोगे, सो दिस इज इक्वल टू GRM अपॉन 12R, सारे सॉरी 12, GRM अपॉन 12, वैल्यू पुट करो 9.8, R का वैल्यू 6400 किलोमीटर, तो 6400 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर हो गया, मास 2000 kgs है, डिवाइडेड बाय 12, ये सारा सॉल्व करेंगे तो 1.067 10 टू द पावर 10 जूल्स आता है. सो इतना एनर्जी हम लोगों को देना पड़ेगा उस सैटेलाइट को, जिससे कि उसका रेडियस 2R से इंक्रीज होके 3R हो जाए. क्लियर है बच्चों? लिख लिया बच्चों? No, sir. Yes, sir. थर्टी फर्स्ट वाला तुम्हारे इससे ये है, मतलब 31st वाला नीट के लेवल का नहीं है, बाहर मतलब नीट से ज्यादा लेवल का है, वो आएगा नहीं. 32nd वाला करते हैं. यहाँ पे सैटेलाइट क्लोज टू अर्थ इज इन ऑर्बिट अबव द इक्वेटर विद अ पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ 1.5 आवर्स. तो पहला वाले का जो पीरियड ऑफ रोटेशन टाइम पीरियड हो गया, ठीक है. सो सैटेलाइट क्लोज टू अर्थ इज इन द ऑर्बिट विच इज इक्वल टू 1.5 आवर्स. तो ये हमारा टाइम पीरियड पहला 1.5 hour, which is equal to 3/2 hours. If it is above a point P on the equator at some time, it will be above P again after. So देखो देखो ये अर्थ है मान लो, और एक क्लोज टू अर्थ एक ऑर्बिट पे रोटेट कर रहा है सैटेलाइट, और इसका पीरियड ऑफ रोटेशन 1.5 आवर्स से 3/2 आवर्स है. So if it is above a point P on the equator at some point, मान लो पॉइंट P के ऊपर एक ये सैटेलाइट है, it will be above P again after what time. तो अब देखो इसमें दो केसेस होगा. पहला केस, अगर ये जो सैटेलाइट है ये भी वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, सो इफ
satellite is going from west to east. ठीक है, तो सैटेलाइट जब वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, पहले एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ ठीक है इज इक्वल टू 2 पाई एंगल कितने 24 आवर्स में जाता है, तो 2 पाई बाई 24 रेडियन पर आवर हो जाएगा एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ। ठीक है, एंगुलर स्पीड ऑफ सैटेलाइट अगर देखोगे सो अब अगर सैटेलाइट का एंगुलर स्पीड देखेंगे, दिस इज 2 पाई अपॉन 1.5 मतलब 3/2 रेडियन पर आवर ना। अगर वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है तो रिलेटिव एंगुलर स्पीड, सो सैटेलाइट इज गोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, relative angular speed is equal to, इसको ω1 मान रहे हैं, इसको ω2 मान रहे हैं, सेम डायरेक्शन में दोनों जा रहा है तो ω1 माइनस ω2 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये स्पीड फास्टर है तो ω2 माइनस ω1 करेंगे। रिलेटिव एंगुलर स्पीड इज ω2 माइनस ω1, सो 2 पाई 1/3/2 minus 1/24. So this is 2 pi 2/3 minus 16 minus 1 15/24 2 pi into 15/24 ओमेगा का वैल्यू हो गया। अब टाइम पीरियड t is equal to 2 pi by relative angular speed, so 2 pi by 2 pi कट गया 24/15, so 3 8 3 5 1.6 hours, so वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है तो 1.6 आवर। अब सेकंड केस जब ये ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, सो ईस्ट टू वेस्ट जाएगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया, तो रिलेटिव एंगुलर स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगा ω2 प्लस ω1 हो जाएगा। तो ω2 प्लस ω1 मतलब 2 पाई 2/3 प्लस 1/24, so 16 plus 1 2 pi into 17/24, तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड होगा t 2 pi by ω/r करोगे, so 2 pi 17/24 24 ऊपर चला जाएगा, so 24/17 रेडियन, sorry 24/17 hour if it is rotating from east to west। तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 दोनों करेक्ट है यहाँ पे। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया आपने? Yes, sir.
Now 33rd question, an orbiting satellite will escape if its speed is increased by 50%, its speed in the orbit is increased to root under 1.5 times its initial value, its kinetic energy is double, or if it stops moving in the orbit. तो एक सैटेलाइट एस्केप कब करेगा ये हम लोग को निकालना है. सो हम लोग के पास देखो जो एस्केप स्पीड है, एस्केप स्पीड इज रूट अंडर 2gm/r, और जो ऑर्बिटल स्पीड है दिस इज इक्वल टू रूट अंडर gm/r. तो जो एस्केप वेलोसिटी के लिए उसको कितने से अपना स्पीड इंक्रीज करना पड़ेगा, v माइनस v0 डिवाइडेड बाय v0. सो दिस इज द रिलेटिव वैल्यू जिससे कि वो अपना स्पीड इंक्रीज कर रहा है. सो v माइनस v0 बाय v0 will give you root under 2gm/r, root under gm/r, root under gm/r means root 2 minus 1 upon 1. So this is 0.414. परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 41.4% से इंक्रीज करना पड़ेगा. तो ये कह रहा है 50% से इंक्रीज करना पड़ेगा, तो ये तो गलत हो गया. स्पीड इज इंक्रीज बाय रूट अंडर 1.5 टाइम्स, नो, है ना, दिस इज नॉट इंक्रीज बाय रूट अंडर 1.5 टाइम्स, ये भी गलत है. अब आ जाते हैं काइनेटिक एनर्जी पे. काइनेटिक एनर्जी निकालो सेकेंड केस का और फर्स्ट केस का, मतलब एस्केप वेलोसिटी के केस में और इसका. तो हाफ m v स्क्वायर हाफ m v0 स्क्वायर, एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर कर दोगे 2gm/r एंड दिस इज gm/r. gm/r ये कट गया 2/1. तो काइनेटिक एनर्जी को क्या करना हो रहा है, डबल करना पड़ रहा है. तो ये जो है हमारा ऑप्शन, तो ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये वाला ऑप्शन गलत. इफ इट स्टॉप्स मूविंग इन द ऑर्बिट, ये भी गलत. सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. क्लियर? Yes, sir. लिख लिया सबने? Now Kepler's law of planetary motion. तो देखो केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, सबसे पहला क्या लॉ था कि जो प्लैनेट है वो हमेशा जो रोटेट करेगा सन के अबाउट, तो सन विल बी at one of the focus and planet will rotate in an elliptical orbit. So when a particle moves with respect to two fixed points in such a way that the sum of the distances from these 2 points is always constant, then the path of the particle is ellipse. Ellipse का definition है, तो उससे हम लोग को कोई ज्यादा मतलब नहीं है. And the two fixed points are called the foci. So ये दोनों जो है focus का plural होता है foci, ये दोनों focus हो गया इसका. ये जो CD है, ये जो स्मॉलर डिस्टेंस है इसको माइनर एक्सिस कहते हैं, और ये जो AB है, जो बड़ा वाला जो डिस्टेंस है इसको मेजर एक्सिस कहते हैं. ठीक है. सो CD इज माइनर एक्सिस, AB इज मेजर एक्सिस. इन द फिगर अबव F1 एंड F2 आर टू फोकाई ऑफ एलिप्सिस. तो ये दोनों दो फोकस हो गया. फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ एलिप्स हम लोग को पता है कि इसका जो डिस्टेंस इससे और इससे कांस्टेंट होगा, तो PF1 प्लस PF2 इज कांस्टेंट, राइट. तो PF1 प्लस PF2 कांस्टेंट है, इसका मतलब
ये तुम जो कांस्टेंट है वो डेरिवेशन तुमको नहीं इंपॉर्टेंट है, तुमको ये जानना है कि ये जो कांस्टेंट होता है ये 2a के बराबर होता है, ठीक है ना। अब पहला जो लॉ ऑफ ऑर्बिट था वो क्या था, लॉ ऑफ ऑर्बिट. So first law of Kepler was called law of orbit. So each planet revolves around the sun in an elliptical orbit. है ना, each planet revolves around the sun in an elliptical orbit with the sun situated at one of the two foci as shown in the figure. The planets move around the sun in an elliptical orbit and ellipse has two focuses, that is S and S dash. The sun remains at one of the focus. Let's say हम assume करते हैं कि S पे sun. Now PA is called the major axis and BC is called the minor axis. ठीक है, तो मेजर एक्सिस का लेंथ 2a के बराबर होता है और इसका 2b के बराबर होता है, ठीक है। तो ये जो O से जो डिस्टेंस है A तक का, इसको A बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस, और OB ये जो डिस्टेंस है ये हाफ है टोटल माइनर एक्सिस का, तो ये 20 लेंथ का होता है जिसको हम लोग सेमी माइनर एक्सिस कहते हैं। तो ये हो गया सेमी मेजर एक्सिस OA, और ये जो OB है ये हो गया सेमी माइनर एक्सिस. सो सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस A, semi minor axis B. The point P and A on the orbit are called the perigee and the apogee, right? तो ये जो पॉइंट है, जो नियरेस्ट पॉइंट है, इसको पेरिजी कहते हैं, है ना। हम लोगों ने उस समय देखा भी था कि जो पास है तो P से पास और पेरिजी, और ये जो पॉइंट है इस फारदेस्ट है, इसको हम लोग एपोजी कहते हैं. So point P and A on the orbits are called perigee and apogee and represents the closest and the farthest distance from the sun. The eccentricity of an ellipse is defined as the ratio of OS and PO. So OS upon PO will give you the eccentricity. Eccentricity मतलब कितना ज्यादा ये जो है elliptical shape का है, वो इसेंट्रिसिटी मेजर करके बताता है. So OS upon A, OP is basically A, semi major axis, तो OS upon A is equal to E, तो OS क्या हो जाएगा, AE के बराबर हो जाएगा. So OS is equal to A into E. तो ये सब मैथ्स की चीज है ज्यादा. दूसरा क्या है, सेकंड जो लॉ था वो क्या था, लॉ ऑफ एरियाज. मतलब एरिया स्वेप्ट बाय अ planet in any time interval will always be constant. So radius vector drawn from the sun to a planet sweeps out equal areas in equal interval of time. Okay? So that means the aerial velocity of a planet around the sun is always constant. Linear velocity of planet is more than. So इसका मतलब क्या, एरियल वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो जब दूर रहेगा तो धीरे धीरे मूव करेगा, और पास रहेगा तो ज्यादा मूव करेगा, तेजी से मूव करेगा, जिससे कि एरिया इसके बराबर ला सके. सो लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट इज मोर व्हेन इट इज क्लोजर टू द सन देन व्हेन इट इज अवे फ्रॉम द सन, क्योंकि थोड़ा भी डिस्टेंस मूव करेगा तो एरिया ज्यादा कवर करेगा. तो इसीलिए स्पीड यहाँ पे स्लो हो जाता है जब डिस्टेंस पे रहता है, और जब पास रहता है तो स्पीड जो है फास्ट हो जाता है. So aerial velocity is area swept by time taken. Let dA is the area swept by a line joining this. Then according to Kepler's law, dA upon dt is a constant. Law of periods क्या कहता है, ये थर्ड लॉ था. So law of periods says the square of the time period is equal to cube of the semi-major axis. So is proportional to square cube of the semi-major axis. So the square of the period of revolution of a planet around the sun is proportional to the cube of the semi-major axis of its elliptical orbit. So t square is proportional to a cube, right? So t square, proportionality sign को equality sign से कर दिया. T square is ka cube. K is a proportionality constant. For two different planets, we can write t1 square by t2 square is equal to a1 cube by a2 cube. So thus, larger the distance of a planet from the sun, the larger will be its period of revolution around the sun.
So the period of revolution of the farthest planet Pluto around the sun is 247 years, while that of nearest planet Mercury is 81 days. ठीक है. So यहाँ पे ये सारा चीज बताया हुआ है. यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड होगा जब पेरिजी पे होगा, एपोजी पे मिनिमम स्पीड होगा. ये सेमी माइनर एक्सिस हो गया बी, ये सेमी मेजर एक्सिस हो गया ए, और ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं. C इज इक्वल टू ए हो गया, E इज इक्वल टू C अपॉन ए हो गया इसेंट्रिसिटी. ये पॉइंट एपोजी है, ये हमारा पेरिजी है. ठीक है. Thus the speed of the planet at apogee and perigee, ये तुम याद कर लेना, है ना, कभी कभी डायरेक्ट आ सकता है. तो स्पीड एट एपोजी क्या हो जाएगा, VA इज इक्वल टू GM बाय रूट अंडर 1 माइनस E बाय 1 प्लस E. देखो ऊपर नेगेटिव है तो मिनिमम के लिए ना, और जब मैक्सिमम होना है तो ऊपर पॉजिटिव होगा, ऐसे करके याद कर सकते हो. रूट अंडर GM बाय 1 प्लस E बाय 1 माइनस E. दिस इज वेलोसिटी एट पेरिजी एंड दिस इज वेलोसिटी एट एपोजी. ठीक है. तो इतना ही है हम लोग को करना है. ठीक है. और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. कर लिया आप लोगों ने? Now next है, a planet of mass m moves along an ellipse around the sun so that its maximum and minimum distance from the sun is equal to r1 and r2 respectively. So planet का mass m है, moves along an ellipse around the sun so that the maximum and minimum distance from the sun is equal to r1 and r2. तो apogee और perigee का distance दिया हुआ. Find the angular momentum of this planet relative to the center of the sun. So angular momentum of this planet relative to center of the sun हम लोग को निकालना है. So पहले तो let's say elliptical orbit है, इधर इधर. ये जो डिस्टेंस है ये r2 है, ये डिस्टेंस r1 है. ठीक है. और planet of mass m, इसका mass m है, moves along an ellipse around the sun so that its maximum and minimum distance from the sun is equal to r1 and r2 respectively. Find the angular momentum of this planet relative to the center of the sun. Now एंगुलर मोमेंटम अब अगर हम लोग निकालते हैं, मान लो ये पोजीशन को 1 ले रहे हैं और इस पोजीशन को 2 ले रहे हैं. सो एंगुलर मोमेंटम at 1 L1 is equal to mv1 into r1. ठीक है. और एंगुलर मोमेंटम at 2 L2 is equal to mv2 into r2. Now by conservation of angular momentum, so ये हमारा mv1 r1 is mv2 r2.
मास और मास कैंसिल हो गया, सो दिस इज इक्वल टू V1 R1 is equal to V2 R2. Now applying conservation of energy at 1 and 2. So by conservation of energy अब half mv1 square minus gmm upon r1 is equal to half mv2 square minus gmm upon r2. ठीक है, अब इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। हम लोग को एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस प्लैनेट रिलेटिव टू सेंटर ऑफ द सन निकालना है। तो कोई भी mv1 r1 निकाल लो, mv2 r2 कोई भी निकाल लो। सो पहले तो v1 जो है वो r1 और r2 के टर्म्स में निकाल लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो v2 इज इक्वल टू v1 r1 बाय r2, इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा हाफ mv1 स्क्वायर, ये स्मॉल m को सब में कैंसिल कर दो, स्मॉल m सब में कैंसिल हो गया। तो और हाफ भी हटा दो, मतलब ये हो जाएगा v1 स्क्वायर माइनस 2gm बाय r1 इज इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस 2gm अपॉन r2। v2 की जगह हम लोग पुट कर रहे हैं, यहाँ से आ जाएगा v2 इज इक्वल टू v1 into r1 by r2. So v1 square minus 2gm r1, v1 square r1 square r2 square minus 2gm by r2. v1 स्क्वायर कॉमन ले लोगे, हमारा आ जाएगा r1 स्क्वायर बाय r2 स्क्वायर माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू gm, इधर ले लोगे 1 बाय r2 माइनस 1 बाय r1। ठीक है, सो ये v1 इज इक्वल टू, सो v1 स्क्वायर r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर बाय r2 स्क्वायर कर दो, दिस इज gm इंटू r1 माइनस r2 बाय r1 r2। तो एक r2 तो कैंसिल हो गया, r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर में बचेगा r1 प्लस r2, r1 माइनस r2 कैंसिल हो गया, राइट। तो इससे हमारा आ गया v1 स्क्वायर इज इक्वल टू gm r1 r2 अपॉन r1, r2 ऊपर चला गया, इंटू r1 प्लस r2। सो 2gm r2 बाय r1, अच्छा 2 था ना, ये 2 रह गया यहाँ पे, 2gm r2 अपॉन r1 इंटू r1 प्लस r2। ठीक है, ये हमारा v1 स्क्वायर आ गया। तो इससे हम लोग v1 निकाल सकते हैं, v1 इज इक्वल टू रूट अंडर 2gm r2 डिवाइडेड बाय r1 इंटू r1 प्लस r2। v1 निकल गया, अब एंगुलर मोमेंटम L1 निकाल लो, mv1 इंटू r1 करके इसमें इसको v1 का वैल्यू इसमें डाल देंगे तो आंसर निकल जाएगा। क्लियर है बच्चों, पुट कर लेना, इसमें आंसर आ जाएगा तुम्हारा, इसको डाल के। समझ में आ गया ना? Yes, sir. ठीक है, इसको कर लेना। विल स्टॉप हियर ओनली,
कल हम लोग 3-4 क्वेश्चन इसके रह गए हैं और कुछ एससी वर्मा के क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा ग्रेविटेशन फिर। ओके Okay, sir. हाँ दिव्यांशी लॉ ऑफ एरियाज वाला देखना है क्या तुमको? 1 मिनट में जाता हूँ उस पर। Yes, sir. हाँ